service transition goal and its scope. Then we have seen what is service management and functions and process of service transition, the four characteristics of process, the fundamentals of service transition. So this we have covered in ninth slide. The service transition fundamentals we have covered. And in yesterday's lecture, we have started these principles of service transition. Okay. The principles of service transition means if you're following any principle, first you have to define the service. What the service is about. Define the service means tangible, intangible assets we have to define, and utilities of the service and warranties of the service. Okay, definition of service में क्या क्या आएगा? Tangible, intangible assets, service का utilities and warranties. Okay, then after that, after defining the service, you can implement a policy for the service transition. Okay, you have to prepare policy for service transition. The policy में what you will include, what we have to include in policy for service transition. See, policy में ये होना चाहिए कि जितने भी चेंजेस, ठीक है, द चेंजेस विच यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट वो सर्विस ट्रांजिशन के फेज में होना चाहिए. ओके, इम्प्लीमेंट ऑल द चेंजेस टू सर्विसेज थ्रू सर्विस ट्रांजिशन. चेंजेस कहाँ पे होगा इम्प्लीमेंट? सर्विस ट्रांजिशन फेज में. ये पॉलिसी एक. ओके, देन वी हैव टू अडॉप्ट अ कॉमन फ्रेमवर्क एंड स्टैंडर्ड्स. जो चेंजेस कर रहे हैं उसके लिए एक फ्रेमवर्क, कॉमन फ्रेमवर्क डिजाइन करना है फॉर द चेंजेस एंड स्टैंडर्ड्स. एक कॉमन स्टैंडर्ड हम लोग को फॉलो करना है. ओके, maximize reuse of established processes and systems. Means the processes which are already established. Okay, the processes and system which are already established, उसको maximize reuse कैसे करें? Means existing process जो है, if you are changing the service, means what we are doing, we are changing the existing service. If you are changing the service, that means what we are doing, existing service में we are modifying anything. Now we have to maximize the reuse of the established processes. These are the policies. ट्रांजिशन प्लान्स को अलाइन करना विद द बिजनेस नीड्स. ठीक है, अलाइनमेंट ऑफ सर्विस ट्रांजिशन प्लान्स विद बिजनेस नीड्स. देन मेंटेन रिलेशनशिप विद स्टेक होल्डर्स. ओके, स्टेक होल्डर्स के साथ में रिलेशनशिप मेंटेन करना, गुड कम्युनिकेशन मेंटेन करना. देन डिसिप्लिन यू हैव टू फॉलो. देन नॉलेज ट्रांसफर एंड डिसीजन सपोर्ट. ठीक है, नॉलेज ट्रांसफर मीन्स यू हैव टू फॉलो, we have to look at the database to gain knowledge of existing services, to gain knowledge from the existing services so that we can implement the new service. Okay, so our system should be in place for the knowledge transfer. The release and deployment packages should be there. Release, how we are going to release it. Okay, release करने के time पे what are its configuration, the release planning and deployment, how we are going to deploy it. तो ये सब पॉलिसी में आता है. Okay, anticipate and manage course corrections. Okay, what are the corrections we are going to implement, how we are going to resolve it. Then proactively manage resources across service transitions. जितने भी resources we are using in service transition phase, so proactively manage करना. Then early involvement in the service life cycle. Policy में क्या क्या? Ensure early involvement means we have to look at each step of the service life cycle. Okay, so early involvement should be there. Then quality assurance for the new or change service. क्वालिटी एश्योरेंस होना चाहिए. ये सब पॉलिसी है. ओके, सर्विस ट्रांजिशन के. प्रोएक्टिवली इम्प्रूव क्वालिटी ऑल्सो वी हैव टू इम्प्रूव ड्यूरिंग सर्विस ट्रांजिशन. तो सर्विस ट्रांजिशन के प्रिंसिपल्स में व्हाट प्रिंसिपल्स यू हैव टू फॉलो? फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन योर सर्विस. ठीक है, आफ्टर डिफाइनिंग योर सर्विस मेक अ प्लान हाउ यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दी सर्विस. तो इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? अकॉर्डिंग टू दी पॉलिसी ओनली. ठीक है, हाउ यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दी सर्विस according to the policy. तो policy में these are the things.
सर्विस ट्रांजिशन प्रोसेसेस, ओके, प्रिंसिपल्स वी हैव सीन, ये प्रिंसिपल्स है कुछ, देन द प्रोसेसेस ऑफ सर्विस ट्रांजिशन, ठीक है। तो सर्विस ट्रांजिशन प्रोसेसेस में ट्रांजिशन प्लानिंग एंड सपोर्ट, चेंज मैनेजमेंट, सर्विस एसेट एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, रिलीज एंड डिप्लॉयमेंट मैनेजमेंट, वैलिडेशन एंड टेस्टिंग, इवैल्यूएशन, नॉलेज मैनेजमेंट, ये प्रोसेसेस है। See what is service transition? Service transition means how to implement the service, how to release the service, how to test the service. ये होता है सर्विस ट्रांजिशन की फेज में। तो व्हाट आर द प्रोसेसेस? प्लानिंग करना है, ट्रांजिशन प्लानिंग, देन हाउ यू आर गोइंग टू चेंज इट, चेंज मैनेजमेंट, देन चेंज करने के टाइम पे व्हाट आर द सर्विस एसेट्स इन इट्स कॉन्फ़िगरेशन, रिलीज एंड डिप्लॉयमेंट कैसे करना है, हाउ वी आर गोइंग टू टेस्ट इट, इवैल्यूएट इट, then knowledge also we have to maintain. Knowledge in one, you can say in one database we are storing the details of all the components. Knowledge management. So these are the processes of service transition. Now let's see the first process, transition planning and support. Transition planning and support, okay. See, transition planning and support, main purpose of transition planning क्या है? See, when you are planning for transitioning the service into the production environment, जब तुम प्लान कर रहे हो कि तुमको न्यू और चेंज सर्विस को कहाँ पे डिप्लॉय करना है इन द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो उसका मेन पर्पस क्या है ट्रांजिशन प्लानिंग का? प्लान अप्रोप्रिएट कैपेसिटी एंड रिसोर्सेस, ठीक है। वी शुड हैव इनफ कैपेसिटी एंड रिसोर्सेस टू रिलीज, बिल्ड, टेस्ट, डिप्लॉय द न्यू और चेंज सर्विसेज इनटू प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। किस बारे में प्लान करना है कि वी शुड हैव enough capacity and resources to build, release, test and deploy the services into production environment. Capacity and resources होना चाहिए हमारे पास। Plan appropriate capacity and resources, ठीक है। क्यों होना चाहिए? Why we should have enough capacity and resources? Because transition में हम लोग क्या करते हैं? We are building, releasing, testing and deploying the services into production environment, ठीक है। तो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में डिप्लॉय करने के लिए वी शुड हैव इनफ कैपेसिटी एंड रिसोर्सेज। नाउ सी, प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द सर्विस ट्रांजिशन टीम्स एंड पीपल। क्या पर्पस होना चाहिए कि इट शुड प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द पीपल हु आर इन्वॉल्व फॉर implementing the new or change services, ठीक है। तो वी शुड प्रोवाइड सपोर्ट फॉर देम। Then changes are required in a manner that it should ensure the integrity of all identified customer assets. See, if you are planning for the change, okay, so how we have to do? We have to see that we have to ensure the integrity of all identified customer assets. Integrity होना चाहिए जितने भी customer के assets है, ये assets which you have identified, उसमें एक integrity होना चाहिए। Service assets and configuration can be maintained as they evolve through service transition. There should be integrity between all the customers' assets and its configuration. Then issues, service transition issues, risk and deviations are reported to the appropriate stakeholders and decision makers. जितने भी issues arise हो रहे in service transition phase, issues, risk और deviations, किसको report करना है? Stakeholders को, decision makers को। प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो ये सब प्लान हो रहा है हमारा, ओके। देन कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज अक्रॉस प्रोजेक्ट, किसे कोऑर्डिनेट करना है? प्रोजेक्ट एक्टिविटीज अक्रॉस प्रोजेक्ट, सप्लायर्स एंड सर्विस टीम्स वेरेवर रिक्वायर्ड। दीज आर द मेन पर्पस ऑफ ट्रांजिशन प्लानिंग एंड सपोर्ट। ये पर्पस है, ओके। ये क्या ऑब्जेक्टिव है? क्यों ट्रांजिशन प्लानिंग करना है? मेन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मीन्स गोल क्या है,
एम क्या है, ओके। ट्रांजिशन प्लानिंग करेंगे तो हमारा गोल क्या होना चाहिए, दैट इज ऑब्जेक्टिव। अब पर्पस में क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द पर्पस, ओके, मीन्स क्या नीड है, कैपेसिटी एंड रिसोर्सेस है, टीम से कोऑर्डिनेट करना, इंटीग्रिटी होना चाहिए, इश्यूज एंड रिस्क, इश्यूज एंड रिस्क जो है वो रिपोर्ट करना प्रॉपर्ली स्टेक होल्डर्स एंड डिसीजन मेकर्स को, देन कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज विद सप्लायर्स एंड service teams wherever required. Okay. And main objective of transition planning is, objective क्या है, aim क्या है, successfully a new or change services into production environment. ये main objective है कि successfully we have to deploy the new or change services into production environment within the predicted cost, quality and time. See, where you are successfully deploying the new or change services into production environment, cost, predicted cost के अकॉर्डिंग डिप्लॉय करना है, क्वालिटी ऑलरेडी वी हैव टू मेजर इट, ठीक है, एंड टाइम एस्टिमेट। तो द by looking at this component cost, predicted cost, quality and time, you have to successfully deploy the new or change services into production environment. The second thing is common framework we have to adopt, ठीक है। if you are adopting the common framework or standard, so we can achieve the effectiveness and efficiency. See, common, if you are following the common framework, the quality can be improved and we can reuse the existing process also. So if you are using the existing process, the cost saving होगा, right? Organization will gain the profit. तो ये मेरा main objective होना चाहिए, main aim. What are the main aim? Aim क्या है? Successfully establish करना new or change services को into production environment. Then adopt a common framework and reuse the existing process to achieve the effectiveness and efficiency. Then plan जो है वो clear and comprehensive plan, then enable the customer and business change project to align the activities. See, again same thing, it is written here, alignment of service transition plan with the customer and business change project. किसके साथ में अलाइनमेंट होना चाहिए, एक्टिविटी, सर्विस ट्रांजिशन प्लान, see, alignment of service transition plan with the business change project. Alignment of service transition plan with business change project. तो जो अलाइनमेंट है वो क्लियर होना चाहिए, क्लियर प्लान दैट enable the customer and business change project to align the activities with the service transition plan. Okay. ट्रांजिशन प्लानिंग इन सपोर्ट ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस, वी हैव सीन पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, देन स्कोप। एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा कि स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, जनरल क्वेश्चन होगा। सी इफ यू आर स्पीकिंग अबाउट स्कोप, कितना स्कोप है ट्रांजिशन प्लानिंग का, अगर इफ यू वांट टू डिफाइन द स्कोप, तो डिजाइन जो है, डिजाइन विच वी आर यूजिंग फॉर द सर्विस ट्रांजिशन, ठीक है, इनकॉर्पोरेट करना डिजाइन और रिक्वायरमेंट्स को ट्रांजिशन प्लान में, डिजाइन और ऑपरेशन रिक्वायरमेंट को कहाँ पे करना, इनकॉर्पोरेट ट्रांजिशन प्लान में। अगर डिजाइन हम लोग और रिक्वायरमेंट्स कहाँ पे इनकॉर्पोरेट करें ट्रांजिशन प्लान में, तो वी कैन डिफाइन द स्कोप। ओके, देन इफ यू आर मेंटेनिंग एंड इंटीग्रेटिंग सर्विस ट्रांजिशन प्लान कहाँ मेंटेन करें, अक्रॉस द कस्टमर सर्विस एंड कॉन्ट्रैक्ट पोर्टफोलियोज। सर्विस ट्रांजिशन का प्लान को हम लोग कहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं, अक्रॉस दी कस्टमर के साथ में मेंटेन हो रहा है, सर्विस के साथ में, कॉन्ट्रैक्ट पोर्टफोलियोज।
एवरीवन नोज व्हाट इज पोर्टफोलियो. पोर्टफोलियो में क्या क्या प्रेजेंट होता है. ओके. देन मैनेजिंग सर्विस ट्रांजिशन प्रोग्रेस चेंजेस इश्यूज रिस्क एंड डेविएशन. ये सब मैनेज करेंगे तो वी कैन डिफाइन द स्कोप. इश्यूज क्या है ये सब मैनेज करना. सी स्कोप में मैनेजिंग मैनेजिंग लिखा हुआ है. इनकॉर्पोरेट मैनेजिंग मेंटेनिंग मैनेजिंग रिव्यू करना मैनेज करना मॉनिटर करना. तो वी कैन डिफाइन द स्कोप. ठीक है. तो मैनेजिंग सर्विस ट्रांजिशन प्रोग्रेस चेंजेस इश्यूज रिस्क एंड डेविएशन ये सब मैनेज करना करेंगे तो वी कैन डिफाइन द स्कोप. क्वालिटी रिव्यू करना. ओके. देन कम्युनिकेटिंग विद द कस्टमर्स यूजर्स एंड स्टेक होल्डर्स. अगर सी इफ यू आर कम्युनिकेटिंग विद द कस्टमर्स यूजर्स एंड स्टेक होल्डर वी कैन डिफाइन द स्कोप. सर्विस का स्कोप कितना है. देन मॉनिटरिंग एंड इम्प्रूविंग सर्विस ट्रांजिशन परफॉर्मेंस. वी हैव टू मेजर द सर्विस ट्रांजिशन परफॉर्मेंस. ठीक है. आफ्टर मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग वी कैन इम्प्रूव इट. तो सर्विस ट्रांजिशन प्रोसेसेस में फर्स्ट वन क्या है. ट्रांजिशन प्लानिंग एंड सपोर्ट. पहले प्लान करो. ओके. प्लानिंग में क्या क्या है. वी हैव सीन रिस्क एंड इश्यूज मैनेज करना. कैपेबिलिटीज एंड रिसोर्सेज. इनफ कैपेबिलिटीज एंड रिसोर्सेज होना चाहिए. कॉमन फ्रेमवर्क वी हैव टू अडॉप्ट. ठीक है. देन वी हैव टू रीयूज द एग्जिस्टिंग प्रोसेस आल्सो. नॉलेज मैनेजमेंट करना है. ओके. ये सब प्लानिंग है. communicating with the users, communicating with the customers, stakeholders, okay, managing the issues, risk. So these are the planning steps. Second process is change management. After planning, you have to focus on change management. See, there are change management means any change like addition. If you're adding anything, if you're adding any new features of it, or if you are modifying it, or removal. चेंज ही हुआ ना. एडिशन भी एक चेंज है. मॉडिफिकेशन और रिमूवल ऑफ ऑथराइज प्लान और सपोर्टेड सर्विसेज और कंपोनेंट एंड विद एसोसिएटेड डॉक्यूमेंटेशन. डेफिनेशन ऑफ सर्विस चेंज. सर्विस चेंज किसको बोलते हैं हम लोग. अगर इफ यू आर सेइंग दिस सेंटेंस के वी आर चेंजिंग दिस सर्विस मींस आइदर वी आर एडिंग एनीथिंग और वी आर मॉडिफाइंग और वी आर रिमूविंग एनी कंपोनेंट और उसके एसोसिएटेड डॉक्यूमेंटेशन. ये डेफिनेशन होगा सर्विस चेंज का. राइट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देयर आर 7 R. चेंज मैनेजमेंट में 7 R है. 7 R. 7 क्वेश्चंस आर देयर इन चेंज मैनेजमेंट. 7 R. क्यों R बोला गया. बिकॉज 7 सेंटेंस है यहाँ पे. 7 क्वेश्चंस है और ईच क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है इसमें R से कुछ वर्ड है. रेज्ड, रीजन, रिटर्न, रिस्क, रिसोर्सेस, रिस्पॉन्सिबल, रिलेशनशिप. ये याद करना है तुम लोगों को. 7 R में रेज्ड. हु रेज्ड द चेंज. 7 क्वेश्चन है. चेंज जब करोगे तो तुमको देखना है हु रेज्ड द चेंज. ये कैपिटल जो वर्ड है फोकस करो. इसलिए कुछ 7 R बोला गया है. व्हाट इज द रीजन फॉर द चेंज. है ना. रीजन क्या है. व्हाट इज द रिटर्न रिक्वायर्ड फ्रॉम द चेंज. जब तुम चेंज कर रहे हो कोई चीज तो तुमको इन रिटर्न व्हाट यू वांट. व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व इन द चेंज. इफ यू आर चेंजिंग समथिंग तो तुमको रिस्क पे भी ध्यान देना है. क्या रिस्क अराइज हो सकता है चेंज करने के टाइम पे. देन व्हाट रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड टू डिलीवर द चेंज. ये भी देखना पड़ेगा. अगर कुछ चेंज करो तो व्हाट रिसोर्सेज are required. Okay, whether we are having enough resources or not. What are the requirement for the resources if you are changing the service. Then who is responsible for the build, test and implementation of the change. जब change कर तो पता होना चाहिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बिल्ड करना, टेस्ट करना, इम्प्लीमेंटेशन करना चेंज का. who is responsible, okay, for building, testing and implementing the change. What is the relationship between दिस चेंज एंड अदर चेंजेस. जो तुम चेंज अभी कर रहे हो. ठीक है. और अदर चेंजेस जो हुए तो उसमें क्या रिलेशनशिप है. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस चेंज अदर चेंज. तो ये 7 क्वेश्चंस पे हम लोग को फोकस करना है. 7 R ऑफ चेंज मैनेजमेंट. ठीक है. ये वर्ड याद रखना है. रेज्ड, रीजन, रिटर्न, रिस्क,
रिसोर्सेस, रिस्पॉन्सिबल और रिलेशनशिप. Okay, now see, 7 R of change management. Now see, change management का पर्पस लिखा है, गोल लिखा है, एंड ऑब्जेक्टिव. पर्पस, गोल एंड ऑब्जेक्टिव. सी पर्पस क्या, व्हाट इज द पर्पस फॉर चेंज मैनेजमेंट? पर्पस क्या है इसका? क्या पर्पस होगा चेंज मैनेजमेंट का जब तुम कुछ चेंज करो? व्हेन यू आर चेंजिंग एनी सर्विस, व्हेन यू चेंजिंग एनी सर्विस मींस इफ यू आर एडिंग एनीथिंग, इफ यू आर रिमूविंग एनीथिंग, और इफ यू आर मॉडिफाइंग, वो चेंज, सब चेंज ही हुआ. ओके, तो व्हाट इज द पर्पस? चेंज का पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस? इफ आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन के व्हाट इज द पर्पस इफ यू आर एडिंग एनी न्यू फीचर, उसके पीछे पर्पस क्या, रीजन क्या है? ओके, the standardized methods and procedures are used for efficient and prompt handling of all changes. See, पर्पस क्या है? मेथड्स और प्रोसीजर्स हम लोग को, स्टैंडर्डाइज्ड मेथड्स और प्रोसीजर्स वी हैव टू यूज फॉर द एफिशिएंट and prompt handling of all changes. To handle all the changes, standardized methods or procedures होना चाहिए. Methods and procedures. All changes to service assets and configuration items are recorded. जितने भी चेंज करने के टाइम पे जो भी तुम सर्विस एसेट्स यूज कर रहे हो, सर्विस एसेट्स मींस बहुत सारे कंपोनेंट्स यूज करोगे, राइट? ठीक है, तो सर्विस एसेट्स और कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स जो तुम यूज कर रहे हो, वो कहाँ पे रिकॉर्ड करना है? सीएमएस में. कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम एक टाइप का डेटाबेस है जहाँ पे पूरे कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स और सर्विस एसेट्स के डिटेल्स मेंटेन होते हैं. ओके, सो ऑल दी चेंजेस, जो भी चेंजेस कर रहे हो उसके सर्विस एसेट्स और कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स यू हैव टू रिकॉर्ड इन सीएमएस, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम में. ओके, ओवरऑल बिजनेस रिस्क इज ऑप्टिमाइज. ओके, तो बिजनेस का रिस्क ओवरऑल क्या होगा? ऑप्टिमाइज कर सकते हैं हम लोग, बिकॉज कहाँ पे हम लोग स्टोर कर रहे हैं? सीएमएस में. तो दीज आर द पर्पस ऑफ चेंज मैनेजमेंट. और गोल ये है, रिस्पॉन्ड टू द कस्टमर्स चेंजिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट्स. किसको रिस्पॉन्ड करना है मुझे? कस्टमर्स का जो चेंजिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट. सी, हम लोग जब कुछ चेंज करते हैं तो मेन गोल क्या होता है? चेंज इसलिए करते हैं बिकॉज कस्टमर्स जो है ना, कस्टमर्स आर डिमांडिंग मोर, कस्टमर रिक्वायरमेंट्स आर चेंजिंग, दे वांट न्यू फीचर्स, दे वांट मॉडिफिकेशंस. ओके, बिकॉज टेक्नोलॉजी गोज ऑन चेंजिंग. तो इसके लिए मेन गोल क्या है चेंज मैनेजमेंट का? कि वी हैव टू रिस्पॉन्ड टू द कस्टमर्स चेंजिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट while maximize value. चेंजिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करना है कस्टमर के, और वैल्यू और प्रोडक्ट का वैल्यू इंक्रीज होना चाहिए, मैक्सिमाइज होना चाहिए, और इंसिडेंट्स, डिसरप्शन और रीवर्क रिड्यूस करना. ये मेरा मेन गोल होना चाहिए कि कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट को हम लोग को फुलफिल करना है, रिस्पॉन्ड करना है, एंड वी हैव टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ द सर्विस एंड रिड्यूस द इंसिडेंट्स, डिसरप्शन एंड रीवर्क. ओके, देन सेकेंड गोल ये है, वी हैव टू रिस्पॉन्ड टू द बिजनेस एंड आईटी रिक्वेस्ट फॉर चेंज. ठीक है, आईटी बिजनेस एंड आईटी रिक्वेस्ट में भी चेंजेस आ सकता है. लाइक बिजनेस के प्रोसेसेस चेंज हो रहे हैं, एक्टिविटीज चेंज हो रहा है. देखिए, आईटी की टेक्नोलॉजी हम लोग, मतलब डिफरेंट टेक्नोलॉजीज वी आर यूजिंग, तो वी हैव टू रिस्पॉन्ड टू द बिजनेस एंड आईटी रिक्वेस्ट फॉर चेंज. ठीक है, दैट इज अलाइन दी सर्विसेज विद द बिजनेस नीड, ताकि बिजनेस जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो पाए. ठीक है, so we have to respond to the business and IT request for change that will align with the business needs. तो ये मेन गोल है. क्या गोल है? कस्टमर्स के चेंजिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करना, एंड वी हैव टू मेंटेन दी वैल्यू एंड रिड्यूस द इंसिडेंट्स. ओके, एंड दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स.
ऑब्जेक्टिव क्या है कि जितने भी चेंजेस कर रहे हो वो रिकॉर्ड होना चाहिए, टू इंश्योर दैट चेंजेस आर रिकॉर्डेड। क्या इंश्योर कर रहा है, मुझे चेंजेस क्या रिकॉर्ड होना चाहिए, इवेल्युएट होना चाहिए, जो भी चेंज करो वो ऑथराइज होना चाहिए, प्रायोरिटाइज होना चाहिए, प्लान होना चाहिए, टेस्टेड होना चाहिए। चेंजेस जो भी करो वो इम्प्लीमेंट भी करना है, उसको डॉक्यूमेंट भी करना है, उसको रिव्यू भी करना है इन अ कंट्रोल्ड मैनर। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। क्या इंश्योर करना कि जितने भी चेंजेस तुम कर रहे हो वो रिकॉर्ड होना चाहिए, इवैल्यूएट होना चाहिए, प्रायोरिटाइज होना चाहिए, प्लान, टेस्ट, इम्प्लीमेंट, रिव्यू, डॉक्यूमेंटेशन। ओके, बेसिक चीज है। तो इसमें चेंज मैनेजमेंट में मेन तुम्हारा तुमको याद रखना है 7R। 7R ऑफ चेंज मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 7R ऑफ चेंज मैनेजमेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इस पे, 7R ऑफ चेंज मैनेजमेंट पे। Then types of change management we have to see. There are three types of change management. It is also very important. Standard change, normal change, emergency change. Three types of change management है. Standard change, normal change, emergency change. Okay. Is it clear till now what we have covered? Service transition. We have started service transition processes. सर्विस ट्रांजिशन प्रोसेसेस में फर्स्ट क्या था, ट्रांजिशन प्लानिंग एंड सपोर्ट। सेकेंड वन था चेंज मैनेजमेंट। Change management with 7R of change management. Then we have started these types of change management. There are three types of change management: standard, normal, emergency. Is it clear till now? सी स्टैंडर्ड चेंज में तुमको कीवर्ड याद रखना है, ये प्री ऑथराइज्ड होते हैं और रिपीटेटिव होते हैं। स्टैंडर्ड चेंज जो है वो प्री ऑथराइज्ड होते हैं। स्टैंडर्ड चेंज प्री ऑथराइज्ड होते हैं, प्री ऑथराइज्ड चेंजेस, और रिपीटेटिव होता है। रिस्क कम होता है इसमें स्टैंडर्ड चेंज में, और वेल टेस्टेड होते हैं ये। ओके, सी व्हाट द स्टैंडर्ड चेंज, स्टैंडर्ड चेंज मीन तुम्हारा जो रूटीन चेंजेस होते हैं। स्टैंडर्ड चेंजेस को हम लोग, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रूटीन चेंजेस। ओके, तो जो रूटीन चेंजेस है, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल। जो हमारा रूटीन चेंजेस है वो कैसे होते हैं, वो प्री ऑथराइज होते हैं। ओके, पहले से उसको हम लोग ऑथराइज करके रखते हैं, प्री ऑथराइज चेंजेस, जिसमें लिटल और नो रिस्क होता है, एंड इट इज वेल टेस्टेड ऑल्सो। क्योंकि हम लोग को पहले से पता होता है कि ये टाइप के चेंजेस अराइज होने वाले हैं, मतलब ये टाइप के चेंजेस वी हैव टू डू। तो ये स्टैंडर्ड चेंज है। ओके, मतलब रूटीन, जैसे फॉर एग्जांपल रूटीन चेंज क्या हो सकता है, स्टैंडर्ड चेंज मींस रूटीन चेंज। कैन यू गिव एग्जांपल, एनी एग्जांपल? सी एडवांस में अगर मुझे पहले से पता है कि ये चेंज होने वाला है, फॉर एग्जांपल अगर डेटा का कैपेसिटी इंक्रीज हो रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे क्या करना पड़ेगा, एक डेटाबेस मेंटेन करना पड़ेगा। सी लेट्स टेक एन एग्जांपल। मुझे पता है कि 12 का रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है, तो दे विल बी हाई लोड ऑन दी सर्वर, सर्वर पे हाई लोड होगा, तो सर्वर क्रैश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट? अगर सर्वर पे ज्यादा लोड होगा, ज्यादा रिक्वेस्ट होगी, सर्वर क्रैश हो सकता है। तो बेटर टू कीप बैकअप। ओके, बैकअप मेंटेन करना, तो ये सब क्या है, स्टैंडर्ड चेंज में आएगा। स्टैंडर्ड चेंज, ओके, मींस रूटीन चेंज। फॉर एग्जांपल तुम पहले से क्या कर रहे हो, प्रोएक्टिव होके तुम पहले से रिप्लेसमेंट कर रहे हो। प्रोएक्टिवली यू आर रिप्लेसिंग द हार्ड डिस्क, ठीक, बिकॉज तुमको पता है कि ये फेलियर होने वाला है, हार्ड डिस्क फेल होने वाला है, तो तुम क्या कर रहे हो, पहले से रिप्लेस कर रहे हो हार्ड डिस्क को। ठीक, तो स्टैंडर्ड चेंज मीन रूटीन चेंज, पहले से वो पीरियड ऑथराइज होते हैं,
हम लोग को पहले से इसका आइडिया होता है। ओके, प्री ऑथराइज स्टैंडर्ड चेंज को तुम रूटीन चेंज बोल सकते हो। इट इज प्री ऑथराइज रिपीटेटिव, इसमें नो और लो रिस्क होता है, एंड इज वेल टेस्टेड बिफोर। ठीक है, वेल टेस्टेड होते हैं। इज इट क्लियर? सेकेंड टाइप क्या है? आर यू लिसनिंग? सबका ध्यान है लेक्चर में? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. लेट्स टेक दिस वन आल्सो। नॉर्मल चेंज क्या है? जो भी नॉर्मल चेंज होते हैं उसको कैब प्रोसेस को फॉलो करना है। कैब, सी नॉर्मल चेंज का मीनिंग ये है, नॉर्मल चेंज भी रिपीटेबल हो सकते हैं, और नॉर्मल चेंज कब अकर होते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है नॉर्मल चेंज की। स्टैंडर्ड चेंज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, नॉर्मल चेंज की फ्रीक्वेंसी जो है वो लेस होती है। सी लेट्स टेक एन एग्जांपल। नॉर्मल चेंज क्या फॉलो करता है? नॉर्मल चेंज के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं, इट शुड गो थ्रू दी कैब प्रोसेस। व्हाट इज कैब? चेंज, कैब स्टैंड्स फॉर चेंज एडवाइजरी बोर्ड। कैब का क्या मीनिंग है? कैब स्टैंड फॉर चेंज एडवाइजरी बोर्ड। चेंज एडवाइजरी बोर्ड। ओके, नाउ सी व्हाट इज चेंज एडवाइजरी बोर्ड। सी कैब का मीनिंग ये है, कैब जो चेंज एक बोर्ड है, ये जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी है। ओके, वैसे चेंज मैनेजमेंट के लिए एक बोर्ड है, चेंज एडवाइजरी बोर्ड। तो ये बोर्ड का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सी व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैब? तो कैब के अंदर क्या होता है, लेट अस टेक एन एग्जांपल। तो कैब की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि उनको, मींस कैब इज नॉट अप्रूविंग दी चेंजेस। उनका मेन रोल ये है कि जितने भी बिजनेस है, ओके, बिजनेस है, टेक्नोलॉजी है, उनमें जो भी इश्यूज अराइज होते हैं, ओके, टेक्निकल इश्यूज और एनी अदर इश्यूज, उसको क्या करना, प्रॉपरली मैनेज करना, वो कैब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चेंज एडवाइजरी बोर्ड की। ठीक है, तो जितने भी चेंजेस हो रहे, तो उसमें एक चेंज मैनेजर होता है कैब में, चेंज एडवाइजरी बोर्ड में एक मैनेजर होता है। और मैनेजर क्या करता है, जितने भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स और एनी अदर प्रॉब्लम्स है, और जो भी चेंज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको क्या करना, प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करता है वो विद दी ओनर्स। चेंज प्रोसेस कोऑर्डिनेटर के साथ में वो कोऑर्डिनेट करता है कैब का मैनेजर। ओके, तो चेंज एडवाइजरी बोर्ड में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। ओके, तो उसमें जो मेन मैनेजर है चेंज एडवाइजरी बोर्ड का, वो क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है चेंज प्रोसेस कोऑर्डिनेटर के साथ में। ठीक है, तो चेंज एडवाइजरी बोर्ड को सी, जो चेंज एडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग भी कंडक्ट होती है। ठीक है, मीटिंग वो कैसे भी हो सकती है, डेली, वीकली और मंथली। तो मेन एजेंडा क्या होता है चेंज एडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग का? व्हाट इज द मेन एजेंडा? मेन एजेंडा क्या है कि अपकमिंग, वो लोग मीटिंग में ये डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द अपकमिंग चेंजेस। ये अपकमिंग चेंजेस कौन से हैं, ठीक है, उसका रिव्यू करते हैं। पास्ट में कौन से चेंजेस किए थे, ठीक है, देन व्हाट आर द प्रोसेसेस इन्वॉल्व, कौन से प्रोसेसेस हमारे पास है चेंज करने के लिए। तो ये सब चेंज एडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग में होता है। ओके, व्हाट आर द अपकमिंग चेंजेस यू आर गोइंग टू डू, व्हाट आर द पास्ट चेंजेस, एंड व्हाट चेंज प्रोसेस यू आर फॉलोइंग। ठीक है, तो कैब के अंदर क्या होता है, डिफरेंट नीड्स जो है, चेंजिंग नीड से वो डिस्कस किया जाता है। तो नॉर्मल चेंज अगर तुमको करना है तो तुमको किससे कंसल्ट करना पड़ेगा? यू हैव टू कंसल्ट विथ चेंज एडवाइजरी बोर्ड के साथ में कंसल्ट करना होगा। ओके, व्हाट इज नॉर्मल चेंज? सी नॉर्मल चेंज मीन अ चेंज दैट इज नॉट अर्जेंट। ऐसा चेंज जो अर्जेंट नहीं है, और यू कैन से प्री अप्रूव्ड नहीं होता है, ये पहले से अप्रूव्ड रहता है स्टैंडर्ड चेंज। पर नॉर्मल चेंज इट इज नॉट प्री अप्रूव्ड, इट इज नॉट, नॉर्मल चेंज एक अर्जेंट चेंज भी नहीं है ये। ओके, एनी चेंज दैट इज नॉट अर्जेंट,
ओके, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल चेंज। ओके, तो अर्जेंट नहीं है तो मीन्स थरो उसका क्या होता है, रिव्यू किया जाता है बिफोर अप्रूविंग, इसको थरो रिव्यू किया जाता है। नॉर्मल चेंज को अप्रूव करने से पहले उसका थरो रिव्यू किया जाता है, क्यों हमको ये चेंज करना है, ठीक है, बिकॉज ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए कैब से कंसल्ट करना पड़ता है। चेंज एडवाइजरी बोर्ड, चेंज एडवाइजरी बोर्ड देखती है कि तुम्हारा अपकमिंग चेंजेस तुम क्या करने वाले हो, क्यों पास्ट में क्या किया था, ओके, प्रोसेसेस कौन से है तुम्हारे पास। तो स्टूडेंट्स ओनली लेस देन 1 minute इज रिमेनिंग, so we will continue in the next lecture, ठीक है, टाइप्स ऑफ चेंज मैनेजमेंट।